Hello there everyone, what's up? In today's video, I am going to share a lot of questions related to sunscreen, like how to apply it, how much to apply, and because we are sitting at home in this pandemic, should we apply sunscreen at home or not, and a lot of questions like that. So if you are interested in knowing all those things, so please keep on watching. Very first question which actually arises in a lot of people's mind is that what is a sunscreen and what does it actually do? What are the advantages of applying sunscreen? Should we even apply it or not? Because there are a lot of people who do not understand the concept of sunscreen. So that is the first question what we are going to cover. Okay, so first thing, what is a sunscreen? So sunscreen is any lotion or any cream. It can be cream based, it can be lotion based, it can be water based, it can be gel based. Anything which is in form of a sunscreen, it protects us from UVB and UVA harmful rays. So you should always go for sunscreen which has SPF 30 or SPF 30 plus. So the next question which comes is, what does a sunscreen actually do? Why should we even apply it? Like, what are its advantages? So let's answer that question. The first reason is that it protects you from UVA and UVB rays. Or in simple terms, it protects your skin, body skin and face from harmful sun rays, which we have already discussed can cause a lot of skin related problems like skin cancers, sunburns and a lot of problems. Second, it protects your skin from pigmentation problem. You must have seen a lot of people have these small brown spots on their skin. That is because of sun. So it actually prevents you from pigmentation problem. Third, it helps in preventing sunburns. If you have a good amount of sunscreen on your body and your skin, you can actually protect your skin from getting severe sunburns. And last, skin dullness. How can we forget that? We do not want our skin to get dull, really, lazy looking and that stuff. So applying sunscreen really helps. So बात तो हो गई sunscreen क्या होता है and what does a sunscreen actually do. So the next thing which I hear a lot is that I have a really sensitive skin. Should I apply sunscreen? Or I have extremely oily skin or extremely dry skin. Should I apply sunscreen? Guys, yes. Let's talk about who should apply sunscreen and किस एज ग्रुप को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए. सो एनीवन हु इज अबव 1 ईयर, बिकॉज इन्फेंट्स को इट इज नॉट रिकमेंडेड कि उनको सनस्क्रीन अप्लाई किया जाए. यू कैन हैव एनी स्किन टाइप, यू कैन हैव एनी स्किन टेक्सचर, एनी स्किन टोन, कैसा भी स्किन टाइप आपका हो, everyone should apply a sunscreen. That is why sunscreen are made in such a variety, so that वो हर स्किन टाइप, हर स्किन टेक्सचर, हर स्किन टोन को सूट कर सके. Okay, so there are like a lot of sunscreen available in the market. Like अगर आप एक लेने जाओ ना, if you are even going on a shopping app, अगर आपको एक sunscreen लेनी हो, there are tons of sunscreen which actually makes you so confused that which one to buy according to your skin tone. आपकी skin type के according आपको किस type का जो sunscreen है apply करना चाहिए, अब हम वो बात करेंगे. So basically, those who don't know the types of sunscreen, let's just discuss that in really brief. There are two types of sunscreen. The first one is mineral sunscreen and the second one is chemical sunscreen. Mineral sunscreen are basically what we use in our daily basis. जो हम daily basis पे लेते हैं, वो sunscreen करती क्या है ना कि आपकी skin के ऊपर एक layer form कर देती है, एक हीट प्रोटेक्टेंट लेयर आपकी स्किन के ऊपर फॉर्म कर देगी, सो दैट जो यूवी रेज है वो आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब ना हो पाए. सनस्क्रीन आर कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट इज मिनरल सनस्क्रीन. केमिकल सनस्क्रीन बेसिकली होती क्या है, ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के अंदर एंड यू डू नॉट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ दिस सनस्क्रीन. करती क्या है कि यूवी रेज को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेती है आपकी स्किन में एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट वो उसको रिलीज कर देती है. जिससे होता क्या है, यूवी रेज अगर आपकी स्किन के अंदर एंटर कर भी रही है तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट उस यूवी रेज को रिलीज कर देगी, जिससे आपका स्किन जो है बिल्कुल डैमेज नहीं होता है एंड आपका स्किन जो है, आपका बॉडी, योर कंप्लीट फेस, इट रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट. सनस्क्रीन के बारे में नॉलेज तो बहुत ज्यादा होगी. नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट दैट हाउ टू अप्लाई अ सनस्क्रीन. आप गूगल पर जाओगे, सम पीपल विल से, या फिर यूट्यूब पर भी जाओगे, सम पीपल विल से कि फुल टेबल स्पून सनस्क्रीन लगाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हाफ टेबल स्पून एंड सम विल से 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून एंड कुछ लोग तो कहते हैं सनस्क्रीन ही मत लगाओ. अब हम पता कैसे करें कि व्हाट इज द राइट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन जो हमें एक्चुअली अपने फेस पर अप्लाई करना चाहिए. So the sunscreen which I am going to use today is the Bioderma Photoderm 50 SPF Plus Cellular Bioprotection Sunscreen. So this is how the sunscreen looks like. आपको basic yellow kind of packaging में रिसीव होती है. Let me just take out the product.
दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। आपको प्राइसेस एंड एवरीथिंग स्क्रीन पे मिल जाएंगे एंड इफ यू वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन, इसका लिंक जो है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इजीली इसको बाय कर सकते हो। सो यू बेसिकली गेट दिस येलो काइंड ऑफ पैकेजिंग विच इज लाइक रियली सिमिलर टू सनस्क्रीन, बिकॉज यू नो whenever we think about sunscreen, there is this image which comes in our mind, something in yellow, because you know that is our psychological thing. Okay, so this sunscreen says it is a very high protection cream for sensitive skin. Like अगर ये sensitive skin वाले यूज कर सकते हो तो that is like pretty obvious कि जिनकी oily skin है, जिनकी dry skin है, हर skin type of person जो है इस वाली sunscreen को यूज कर सकता है। And also it is providing us SPF 50+, which is like really high, really good amount of sun protection. So you're basically getting 40 ml of quantity in it. So this sunscreen is basically an organic sunscreen. It says laborate dermatologically tested. So basically it is dermatologically tested, so which is like a really good thing. पैकेजिंग की बात हो गई. If we talk about its texture, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ. This is how the texture looks like. Like बहुत ही creamy and थोड़ा सा रनी फॉर्म में white creamy कलर का इसका टेक्सचर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाता है. बहुत ही ज्यादा लाइट वेट सनस्क्रीन है. Like when you will blend it out, ये बहुत ही easily स्किन के अंदर नाइसली डीपली पेनिट्रेट हो जाती है, कंप्लीटली सिंक इन हो जाता है. लाइक आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता आपकी स्किन पे दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग विच इज लाइक रियली हैवी वेट ऑन योर स्किन, बिकॉज ऑब्वियसली इन समर्स वी डू नॉट इवन वांट अ सनस्क्रीन विच लाइक फील्स हैवी ऑन आवर स्किन. सो इट्स बेसिकली अ टिंटेड सनस्क्रीन. ये आपको बिल्कुल हल्का सा टिंट प्रोवाइड करती है. मैं आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करके दिखा देती हूँ. लाइक यू गाइज कैन सी इट हार्डली टुक 2 to 3 seconds to blend it. So बहुत ही अच्छे से लाइक इवनली अपना सिंक इन होने के बाद कि आपको बिल्कुल हल्का सा टिंट आपकी स्किन पे प्रोवाइड करती है, जिससे होता क्या है कि आपकी स्किन टोन जो है बहुत ही इवन लगती है. एक्चुअली डू नॉट लाइक इन सनस्क्रीन्स की हल्का सा टिंट देती है, मिनट वेट करना पड़ेगा, बट जब ये आपका स्किन के अंदर कम्प्लीटली सेट इन हो जाती है तो बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं दिखता. लाइक इट हार्डली टेक्स 2 to 3 minutes फॉर द व्हाइट कास्ट टू गो. इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, which is I think a really good thing. There are a lot of people whose nose is like really sensitive to fragrances, and you are not getting any kind of fragrance in there, which is like a really good thing. If you have any kind of skin type, आप इस वाली सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो. ड्राई, सेंसिटिव, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन, जिस टाइप का भी आपका स्किन है, आप इस वाली पर्टिकुलर सनस्क्रीन को अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो. सो देयर इज दिस वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन. सम पीपल विल फील कि इसको लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा स्टिकीनेस फील हो रहा है अपने फेस पे, या बहुत ज्यादा शाइनी लगेगी ये सनस्क्रीन. एज यू कैन सी मेरे हाथ पे इस टाइम पे कोई शाइनी नहीं है. लाइक जो नेचुरल काइंड ऑफ जिस टाइप का होता है उसी टाइप का लग रहा है. वो चीज आपको फील क्यों होती है? बिकॉज यू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा रहे हो. सेकेंड, आप जो अपना सनस्क्रीन के नीचे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आप करेक्टली यूज नहीं कर रहे हो, या अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यूज नहीं कर रहे हो. अगर आप बहुत सारा मॉइस्चराइजर भर के लगा रहे हो, बहुत सारा सीरम लगा रहे हो, ऑब्वियसली बात है योर फेस इज ऑलरेडी लाइक हैविंग सो मच प्रोडक्ट ऑन इट, एंड उसके ऊपर से आप एक सनस्क्रीन ऐड करोगे तो बहुत ही प्रिटी ऑब्वियस है कि आपका फेस जो है वो आपको थोड़ा सा स्टिकी एंड थोड़ा सा शाइनी फील होगा. सो यू शुड नेवर यूज टू मच प्रोडक्ट्स इनसाइड, नॉट इनसाइड, ऑन योर स्किन अपनी सनस्क्रीन से पहले. फर्स्ट एंड सेकंड, आपको सिर्फ करेक्ट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन ही अप्लाई करना चाहिए. बहुत ज्यादा सनस्क्रीन अप्लाई करोगे तो आपका फेस जो है वो बहुत ज्यादा स्टिकी लगेगा, बहुत ज्यादा शाइनी लगेगा. बट इफ यू आर यूजिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन, आपका फेस बिल्कुल स्टिकी नहीं फील होगा एंड ना ही आपका फेस बहुत ज्यादा शाइनी या फिर हैवी वेट लगेगा. लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन कि आपको कितना सनस्क्रीन लेना चाहिए. द करेक्ट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन यू शुड ऑलवेज टेक इज लाइक 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून. 1/4 में मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी क्वांटिटी आती है. दिस इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू नीड. लाइक आप देख रहे हो, एक मटर के दाने के जितनी आपको सनस्क्रीन की क्वांटिटी लेनी है. इफ यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा है, तब यू कैन टेक हाफ अ टेबल स्पून. आई हैव सीन पीपल बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं. ऐसा बोला जाता है कि आप जितनी ज्यादा भरोगे उतनी ज्यादा सन प्रोटेक्शन मिलेगी, बट गाइस ट्रस्ट मी, दैट्स कंप्लीटली बुलशिट. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपको 1/4 ही लेना चाहिए सनस्क्रीन का अमाउंट. इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव ड्राई स्किन, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, दैट इज द अमाउंट you should always take. It is even recommended by the dermatologist.
I used to apply so much sunscreen on my face, but then my dermat actually told me this is the amount of the sunscreen which you should actually take. इससे ज्यादा sunscreen आप अपने फेस पे लगाओगे ना, मिट्टी वगैरह सब आपके फेस के ऊपर आके चिपकेगी and your face will like just go from hair to hair. So this is the amount of sunscreen you should always take. So let's just see कि अब हमें sunscreen apply किस तरीके से करनी चाहिए. As we have seen कि हमें कितना amount लेना चाहिए sunscreen का, always apply your sunscreen after doing your skin care. अगर आप कोई particular skin care follow करते हो तो आपको उसके बाद ही apply करनी चाहिए. One thing you should always keep it in your mind कि अगर आपने vitamin C अपने face पर apply किया हुआ है तो उसके बाद तो sunscreen is like a must. Vitamin C लगाने के बाद आपको कभी भी अपना sunscreen skip नहीं करना चाहिए. Just take the amount ऑफ सनस्क्रीन विच यू हैव टोल्ड. आपको क्या करना है, डॉट डॉट करके अपने पूरे स्किन पे, फेस पे, नेक पे आपको अपना सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई कर लेना है. नाउ सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद डू नॉट रब इट. जितना आप रब करोगे उतना ज्यादा आपके फेस पे आपको लगेगा कि व्हाइट कास्ट आ रहा है या फिर उतना वो अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है स्किन के अंदर. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप एक लेयर फॉर्म करते हो अपने स्किन के ऊपर, आपको वो करनी है. बिल्कुल लाइट हैंड से फॉर्म अ लेयर ऑन योर स्किन एंड हल्का हल्का उसको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाते जाओ. बिकॉज What is a sunscreen? स्क्रीन क्या होता है? इट्स अ लेयर, इट्स अ काइंड ऑफ लेयर. तो आपको अपने फेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म करनी है, उसको अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवाना है. बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन आर द वन जिसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं. मिनरल सनस्क्रीन हम एब्जॉर्ब नहीं करवाते अपनी स्किन के अंदर. आपको एक लेयर फॉर्म करनी है ताकि कोई भी व्हाइट कास्ट ना लगे, बहुत ही जेंटली. एंड देन आपको अपनी स्किन को हल्के से डैब आउट कर लेना है सो दैट आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी, अगर उसमें कोई ऑयलीनेस, कोई भी स्टिकीनेस लग रही है, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक टिश्यू पेपर, उसकी हेल्प से आपको अपनी स्किन को डैब आउट कर देना है एंड यू आर गुड टू गो. उसके बाद आपको अपने जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं, यू वांट टू गो फॉर फाउंडेशन, यू वांट टू गो फॉर जस्ट कॉम्पैक्ट और एनीथिंग, यू कैन डू योर मेकअप आफ्टरवर्ड. सो बिफोर फिनिशिंग ऑफ टुडेज वीडियो, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज देयर आर सम रियली बेसिक कॉमन मिस्टेक विच यू शुड एक्चुअली अवॉइड. सो हम उन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं. सो द फर्स्ट मिस्टेक विच एक्चुअली इज, फर्स्टली, नेवर ब्लेंड टू मच. कभी भी आपको अपनी सनस्क्रीन को बहुत ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा उसको ब्लेंड करोगे उतना ही ज्यादा वो आपके फेस पे एक व्हाइट कास्ट देगी एंड आपका स्किन जो सनस्क्रीन है वो अब्सॉर्ब होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग इट टू मच. यू शुड नेवर गो फॉर SPF अंडर 15 से नीचे का SPF कभी भी नहीं लेना चाहिए. ऑल्सो मैं तो रिकमेंड करूंगी यू शुड ऑलवेज गो फॉर SPF 30 और अबव 30. नेवर अप्लाई टू मच, लेस इज द की. कभी भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है. कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड कि जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा सन प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. 1/4 इज द राइट अमाउंट यू शुड ऑलवेज अप्लाई ऑन योर स्किन. फोर्थ थिंग इज यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर स्किन टाइप. लाइक आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सनस्क्रीन, आपने किसी की सनस्क्रीन का रिव्यू देखा, आपको सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी, आपने सुन लिया कि इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट दैट इज नॉट फॉर योर स्किन टाइप, तो आपको वो चीज नहीं लेनी चाहिए. आपको हमेशा वो टाइप का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जो आपकी स्किन को सूट करता है. फिफ्थ इज डू नॉट ओवर लेयर प्रोडक्ट्स अंडरनीथ योर सनस्क्रीन. ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी सनस्क्रीन के नीचे लगा लोगे तो जब आप अपनी सनस्क्रीन लगाने जाओगे ना, आपका सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा ग्रीसी, बहुत ही ज्यादा स्टिकी एंड बहुत ही ज्यादा खराब लगता है. लास्ट थिंग इज never apply sunscreen just once a day. ऐसा नहीं करना है कि सुबह सनस्क्रीन लगा लिया एंड पूरा दिन छोड़ दिया कि ठीक है काम करती रहेगी. ऐसा कभी भी नहीं करना है. आपको हमेशा जब भी आप सन में, अपना सन एक्सपोजर में जा रहे हो, ऑलवेज अप्लाई अ सनस्क्रीन. अगर आपने सुबह लिया ना, आई डोंट थिंक सो 2 से 3 घंटे या फिर मैक्सिमम लेजर से 4 घंटे, 4 घंटों के बाद कोई सनस्क्रीन काम करती भी है तो यू ऑलवेज नीड टू री अप्लाई. हमेशा आई कैन से अगर आप घर पे हो तो आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ 2 टाइम लगा सकते हो घर में, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको अपनी सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई करनी चाहिए. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है यहाँ पे वो आपको हेल्पफुल होगा. एंड अगर आपको सनस्क्रीन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी थी या कोई भी क्वेश्चन था वो अब तक क्लियर हो चुका होगा. सो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.